Now we will see advantages of the internal source of recruitment and disadvantages of internal source of recruitment. आंतरिक स्रोत जो होते हैं भर्ती के, उसके जो है लाभ और हानि दोनों हम देखेंगे इस वीडियो में. सो पहले हम लाभ देखते हैं. फर्स्ट वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सो दैट द फर्स्ट एडवांटेज इज that internal source of recruitment motivates the employee. You all know that promotion is one of the internal source of recruitment, and by getting promoted, the employee's confidence level increases as he get recognition in the enterprise. It motivates the other employee to do more hard work so that they will also get promoted next time in the next turn. The other advantage of internal source of recruitment is that there is no need of training for the employees. Whenever the internal source of recruitment is used to fill a vacant post by promotion, transfer, demotion, in that cases there is no need of training because the employee already get trained when they have joined the organization. So the double training is not required. The next advantage is less expensive source. Internal sources are the less expensive or are cheaper as compared to the external sources. Internal sources are less expensive because there is no requirement of spending money on the interviews or in recruiting the employee, in searching the employee, and there is no need of spending money on the training also. So here in this source, the money or the fund of the organization also gets saved. So it is a cheap source of recruitment. Now we have seen the advantages of the internal source of recruitment. Now we will see the disadvantages. So the first disadvantage of internal source of recruitment is that there is no scope for the freshers. That means for the newcomers to try for the job, to apply for the job, to learn a new thing. Because in the internal source of recruitment, only the employees who are already working in the enterprise are get promoted, demoted or transferred. No new blood comes in the organization. So it is not providing opportunity for the youngster to try for the job. The next disadvantage of internal source of recruitment is that it makes the workers lethargic or sluggish or lazy. Because in the organization where the basis of promotion is seniority, then in that type of organization, people won't work with the devotion because they know even if they work hard or they work with dedication, they won't be promoted because the promotion are based on the seniority. That means the one who have joined the enterprise first will get promotion first. So in these cases, the employees get lazy in work and ignores work most of the time. The third disadvantage of internal source of recruitment is that it cannot be adopted by the new enterprises that are newly formed, because as you all know that in the internal source of recruitment, employees fills the vacant post who are already working in the same organization. But as the enterprise newly formed, there is no existing organization, so there are no single employees available that can be promoted or transferred. All new employees have to be searched and selected to fill the vacant post in the new organization of the new enterprise. The fourth disadvantage of internal source of recruitment is that there may create an unhealthy competition between the employees. If there are two or more persons working very hard in the organization and one gets the promotion, then the other employee gets a feeling of jealous or a feeling
that their work is not considered and not got recognition in the enterprise. It will create an unhealthy competition among the employees because it will either make the employees lazy or less dedicated, or otherwise it generate a feeling of jealous and may create a feeling in the employee that will lead to the wrong action by the employee, like he may try to ruin or to destroy the image of other employee in order to get the promotion and get recognition by his superior or boss. तो अब हम देखेंगे भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ। तो पहला जो इसका लाभ है वो ये है कि कर्मचारी को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन एक आंतरिक स्रोत होता है भर्ती का। तो किसी भी कर्मचारी को जब प्रमोशन मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसमें एक भावना पैदा होती है कि उसका काम जो है सराहा गया है, उसको जो है पहचान मिली है, तो वो जो है और अच्छे से कार्य करता है अपने नए पद पर। और उसी तरह से दूसरे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी क्या करते हैं, डेडिकेशन से काम करने की कोशिश करते हैं, इस आस में रहते हैं कि हम भी अगर हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें भी क्या होगी, पदोन्नति मिलेगी। दूसरा जो एडवांटेज है वो कि प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है आंतरिक स्रोतों के अंदर, क्योंकि भर्ती के आंतरिक स्रोत के अंदर जो संगठन के अंदर ऑलरेडी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हीं में से किसी एक का जो है चयन किया जाता है, और चयन करके या तो उनको की पदोन्नति की जाती है या उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो ऐसे केस में उन्हें फिर से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी जब उन्होंने संगठन में ज्वाइनिंग की थी, जब उन्होंने पहली बार क्या करा था, ज्वाइन करा था, तब उन्हें प्रशिक्षण दे दिया गया था। तो दूसरी बार उन्हें फिर से संस्था के नियम, कानून और नीतियों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी प्रशिक्षण मिल चुका होता है। तो यहाँ जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये एक भर्ती का जो है आंतरिक स्रोत का लाभ है। तीसरा लाभ ये है कि ये जो है आंतरिक स्रोत भर्ती का, ये कम महंगा होता है, सस्ता पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो बाह्य स्रोत में ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट यहाँ पे जो है कम खर्चे में काम हो जाता है। अब कैसे कम महंगा है ये मैं बताऊँ आपको। तो आप सबको पता है कि भर्ती के आंतरिक स्रोतों के अंदर हमारी पदोन्नति, स्थानांतरण आता है, और पदोन्नति और स्थानांतरण करने में कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है संगठन को या इकाई को। व्यावसायिक इकाई को जो है अगर वो बाहरी स्रोत या इंटरव्यूज़ लेना चाहती है तो उससे पैसे जो फंड्स है वो जो है स्पेंड करना पड़ेंगे, पैसे लगाना पड़ेंगे इंटरव्यूज़ लेने के लिए। उसे जो है किसी बिल्डिंग का सिलेक्शन करना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगी जहाँ वो इंटरव्यू ले, जहाँ पे वो कैंडिडेट्स को बुलाए। फिर उनकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें उनको जो है फॉर्म भराए जाएंगे, उनकी डिटेल लिखी जाएगी, तो वहाँ उनको समय भी लगेगा और जो है पैसा भी इन्वेस्ट करना होगा। फिर जो नया एम्प्लॉई है जिसका चयन किया जाएगा उसको प्रशिक्षण देने में भी पैसा लगेगा। बट अगर आंतरिक स्रोत का जो है प्रयोग करती है जो एंटरप्राइज़ है वो पदोन्नति या स्थानांतरण का प्रयोग करती है, तो ऐसे केस में प्रशिक्षण भी नहीं देना पड़ेगा, और प्रशिक्षण नहीं देना पड़ेगा मतलब प्रशिक्षण पे लगने वाला व्यय बच जाएगा। सिमिलरली जो लोगों को ढूंढने में और उनको चयन करने की प्रक्रिया में जो पैसा खर्च होता है वो व्यय भी क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा। तो ये भी भर्ती के आंतरिक स्रोत का एक लाभ है। अब हम देखते हैं भर्ती के आंतरिक स्रोतों के दोष क्या क्या हैं। तो भर्ती के आंतरिक स्रोतों के दोष में हाल ही में पहला दोष ये आता है कि ये नए उम्मीदवारों को कोई भी जो है मौका नहीं देता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि वो व्यावसायिक इकाई में आके, संस्था में आके एक जो है नया कार्य संभाले या नया कार्य सीखे। क्योंकि आपको पता है आंतरिक स्रोतों के अंदर ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज़, कर्मचारी संगठन में काम कर रहे हैं उन्हीं की पदोन्नति की जाती है या उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, किसी नए कर्मचारी को नहीं सिलेक्ट किया जाता है। तो जो नए यंगस्टर जो अभी कॉलेज में से निकले हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस की और अनुभव की आवश्यकता है, उन्हें अनुभव मिलने का या उन्हें नए काम मिलने की अपॉर्चुनिटी ये भर्ती का स्रोत नहीं दे पाता है।
दूसरा इसका दोष ये है कि कर्मचारी को जो ये सुस्त बना देता है, उनका समर्पण जो होता है उससे कम कर देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 4 या 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट पदोन्नति किसी एक को मिलती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, दूसरे कर्मचारी जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें एक फीलिंग आ जाती है कि पदोन्नति जो है वो हमें तो मिलने से रही, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें। इस प्रकार की जो सुस्ती है या कम समर्पण ऐसे संगठन में ज़्यादा आता है जहाँ पे कर्मचारियों की जो पदोन्नति होती है वो सीनियरिटी बेस पे होती है, सीनियरिटी पे आधारित होती है। मतलब जहाँ जो कर्मचारी ज़्यादा वरिष्ठ होगा, ज़्यादा सीनियर होगा, उसकी पदोन्नति पहले की जाएगी, और जो कर्मचारी जो है ज़्यादा वरिष्ठ नहीं है या जिसने संगठन को ज्वाइन बाद में किया है, उसकी पदोन्नति जो है बाद में की जाएगी। तो ऐसे संगठन में लोग जो है सुस्त बन जाते हैं, अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पदोन्नति उनकी ऐसे भी होना है, बट पदोन्नति कब होना है, जब उनका नंबर आएगा, जब उनके आगे का वरिष्ठ कर्मचारी उसकी पदोन्नति हो जाएगी, उसके बाद ही जो है उस कर्मचारी की पदोन्नति होगी। तो तीसरा देखते हैं हम। तो तीसरा भर्ती का जो स्रोत है उसका दोष ये है कि इसको नए उद्यम जो होते हैं, नई एंटरप्राइजेस जो होती है, उसको नहीं अपना सकती है, क्योंकि आंतरिक स्रोतों के अंदर ऑलरेडी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं की पदोन्नति स्थानांतरण किया जाता है। और अगर व्यवसायिक इकाई नई बनी है तो उसके पास पहले से कोई संगठन नहीं होगा, और इसलिए पहले से कोई भी एम्प्लॉइज़ या कर्मचारी उसमें काम नहीं कर रहा होगा। जब कर्मचारी होंगे ही नहीं संगठन के अंदर, तो फिर किसकी पदोन्नति करेंगे और किसका स्थानांतरण करेंगे। इसलिए ये नए उद्यमों के लिए उपयुक्त नहीं है। नए उद्यमों को तो भर्ती करना ही होगी, बाह्य स्रोत से या बाहरी स्रोत से ही भर्ती करना होगी, और साथ में उन्हें सारा जो है प्रशिक्षण पे जो है पैसा खर्च करना होगा, और इंटरव्यूज़ और चयन करने की प्रक्रिया में भी उन्हें पैसा लगाना होगा। चौथा देखते हैं। तो चौथा जो इसका दोष है वो ये है कि कर्मचारियों के बीच में एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म ले लेती है कई बार। मैंने जैसे कि आपको पहले पॉइंट में बताया कि अगर 5-6 लोग मेहनत कर रहे हैं और एक को पदोन्नति मिलेगी, तो दूसरे जो होते हैं उनमें या तो वो सुस्त हो जाएंगे, या दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि उनके अंदर एक जलन की भावना पैदा हो जाएगी, जिससे हो सकता है कि वो अपने जो है आगे जाके गलत कार्य करे या जो है गलत काम करे। जैसे कि हो सकता है कि वो दूसरे एम्प्लॉय का जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उसकी इमेज को गिराने की कोशिश करे, उसकी छवि ख़राब करने की कोशिश करे, ताकि जो है प्रमोशन का, पदोन्नति का चांस उसे मिले और उस एम्प्लॉय को ना मिल पाए। तो ये हमने देखे भर्ती के आंतरिक स्रोत और भर्ती के लाभ और दोष दोनों देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाहरी स्रोतों के लाभ और दोष देखेंगे।